friends, what's up? So today we will discuss about chapter number 3 of 6th class geography. Our topic is motion of the earth. But before to move this chapter, I want some more clarity about previous chapters like solar system and longitude and latitude through some clips for the sake of revision. I hope you will be enjoy it. Now we will move on clips. I am the sun. I'm a burning ball of fire. I'm very big indeed. Life on earth depends on me. I am the sun. I am Mercury. I'm the closest planet to the sun. I'm a ball of iron. I have no moon. I am Mercury. I am Venus. I'm the same size as the earth, but I spin the other way much more slowly. I have no water. I am Venus. I am the earth, place where we all live. There is land and lots of sea, so I look blue. I have a moon. I am the earth. I am Mars. I'm a rocky red planet. My mountains are the highest in our solar system. I have two moons. I am Mars. I am Jupiter. I'm a gas giant. I'm the biggest, and I spin the fastest. I have the biggest moon. I am Jupiter. I am Saturn. I'm a gas giant. My rings are made of ice. Titan is my biggest moon. I am Saturn. I am Uranus. I'm an icy gas giant. I'm the coldest planet in our solar system. And I have rings made of dust. I am Uranus. I am Neptune. I'm an icy gas giant. I'm the farthest planet from the sun. I have many storms. I am Neptune. We are the solar system. We are the soul. Now we will move another clip. Latitudes and longitudes. Just like a letter is able to reach your house through your address, a specific place on the map or on the globe can be located with the help of geographic coordinate system.
The geographic coordinates of a place consist of the degrees of latitude and longitude. Latitudes or parallels are imaginary lines drawn parallel to the equator towards both the north and south directions. They are measured from 0 degree to 90 degrees in both hemispheres. The earth is round, and so the length of the latitudes decreases as we move towards the poles. Longitudes or meridians are the imaginary lines drawn between the two poles. They divide the earth in 360 equal segments, like that of an orange. The 0 degree longitude passing through Greenwich in England is called the prime meridian. One half of the world is measured in 180 degree longitudes of east, while the other half in 180 degree longitudes of west. Both the latitudes and longitudes form a grid in which they intersect each other at right angles. So, for locating a place on Earth, you need to read the degrees of latitude and longitude. For example, city of New Orleans is located at 30 degree north and 90 degree west. Now let's move this chapter. Okay, so मोशन ऑफ द अर्थ. तो अर्थ किस तरीके से मोशन करता है? दो तरीके से मोशन करता है, एक रोटेशन के थ्रू, एक रिवोल्यूशन के थ्रू. रिवोल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में. रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है. एंड रिवोल्यूशन मीन्स जो सन के अराउंड चारों तरफ जो अर्थ है वो मूव कर रहा हो, तो उसे अर्थ रोटेशन एंड अर्थ रिवोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो नाउ मूव द अर्थ इज टू टाइप ऑफ मोशन लाइक रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन का मतलब जैसे मैंने बताया, जैसे कि अपने ही जो अर्थ है वो ही अपने ही अराउंड घूमता है, चारों तरफ अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की अराउंड, तो इसे क्या बोलते हैं? रोटेशन. एंड जब सन के अराउंड घूमता है अर्थ, तो उसे क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन. तो जो एक्सिस लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है एज वी नो ऑलरेडी, बट इसमें ये जो इमेजिनरी लाइन है वो हमें मेक श्योर करती है कि जो इसका 66 हाफ डिग्री जो है वो ऑर्बिटल प्लेन है, मतलब जो सूरज के ओर चारों ओर जो है वो घूमती है, जिससे हमें सन से लाइट मिलती है, और हमें लाइट मिलती है तो हमें पता चलता है कि डे है. तो ये जो मूव करता है ये स्पेरिकल शेप में अर्थ मूव करता है. तभी हमें पता चलता है कि जिस साइड अर्थ का मुंह सन की तरफ होता है तो उस साइड हमें फील होता है कि डे है, और जो बैक साइड होता है तो हमें पता चलता है कि वो नाइट है. ठीक है, तो ये अगर हम इसमें यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए जो हमारा अर्थ है, देखिए ये लाइन देखिएगा, दिस इज़ इक्वेटर. एंड इक्वेटर से अगर हम 90 डिग्री पोल पर जाते हैं तो इट्स कॉल, अगर हम सीधा देखेंगे कि अर्थ सीधा है, टिल्टेड नहीं है, तो हमारा जो नॉर्थ होगा वो इधर होगा. ठीक है, बट हमारा जो अर्थ है हमेशा 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड होता है. तो मतलब अगर ये यहाँ से ना होके ये यहाँ पर इमेजिनरी लाइन बनती है, मतलब कि ये साउथ नॉर्थ हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड नीचे की साइड क्या हो गया? साउथ पोल हो गया. तो ये हमारा जो सन है, सपोज यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर जो आ रही है, तो इस साइड मतलब जो ये जो एंगल है यहाँ पर हमारा दिन होगा, और यहाँ पर क्या होगी? इस साइड यहाँ पर हमारी रात होगी. तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं दिन और रात को.
ठीक है। और एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। कैसे होते हैं 24 आवर? जब हमारा जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 24 मतलब पूरे 24 घंटे मूव कर लेता है, तो हमें दिन और रात का पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास दिन और रात होते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं सपोज़। तो यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज़ सन एंड दिस इज़ अर्थ। अर्थ का जो हमारा जो 23rd मतलब एक्सेस टिल्टेड होता है, तो यहाँ पर देखिएगा नॉर्थ साइड एंड दिस साइड इज़ साउथ। एंड हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर को हम ऐसे क्रॉस कर देंगे तो हमारा जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में हमारा जो लाइट है वो सीधी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्दर्न की साइड चलते, नॉर्दर्न या ईस्ट साउदर्न पोल की साइड जाते हैं, तो हमारी जो सन की लाइट है वो थोड़ी कम हो जाती है। बट हमारा जो डे होगा वो डे हमारा जहाँ पर लाइट पड़ेगी वहाँ पर हमारा डे होगा। दूसरी साइड जब हमारा जो अर्थ है वो मूव कर रहा होता है, तो दूसरी साइड हमारा क्या होगा? नाइट होगी। तो इसलिए हमारे डे और नाइट के बारे में हमें पता चलता है कि दिस इज़ डे और नाइट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन अनदर स्लाइड। यस, तो जैसे कि हमने देखा पीछे, जैसे जहाँ पर सन की लाइट ज़्यादा होगी तो हमें फील होगा कि दिस इज़ वार्म डे फील होगा। नाउ वी विल मूव ऑन दिस पिक्चर। यहाँ पर क्या है कि जो एशियन टाइम में जो हमारे एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने बताया था कि अर्थ इज़ अराउंड द रोटेट द ऑन एक्सिस। अपने ही एक्सिस पर क्या करता है? अर्थ मूव करता है या एक चक्कर कंप्लीट करता है पूरे 24 आवर में, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड स्लाइड में आते हैं कि द सेकंड मोशन जो है अर्थ का वो अराउंड द सन है, और वो कितने में कंप्लीट करता है? इट्स 365.5 डेज में कंप्लीट करता है 1 रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। जैसे हमें तभी पता चलता है कि विंटर है, समर है, या फिर स्प्रिंग है, या फिर ऑटोमन है, तो हम यहाँ पर इसे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और हमारा जो हर 4 ईयर्स के बाद हर 4 ईयर में हमारा जो है लीप ईयर आता है, तो वो भी कैसे, वो भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, दिस इज़ सन ऑन द सेंटर। और अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ की अलग अलग सीजन्स हमें समझ में आएंगे कि देखो, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि ये थोड़ा टिल्टेड है और सन की रेज जो है डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है। तो यहाँ पर हमारा 21 जो जून होगा उसमें समर सोलिस्टर होगा, ठीक है। हाई मतलब एकदम पीक पर होगा या हेड पर होगा अर्थ के सन जो है, सनलाइट। और अगर दूसरी तरफ देखें हम, दूसरी साइड साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जो लाइट है, सन की लाइट है, वो 22 दिसंबर मतलब दिसंबर में वहाँ पर क्या फील होगा? समर। तो यहाँ पर कौन से डे में? 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून में समर होता है। उसी दूसरी साइड साउदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ होता है? 22 दिसंबर में, ओके। और अगर हम देखें कि इसका वाइस एंड वर्सा है, जैसे कि यहाँ पर ठंड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, है ना। तो हमें ये डेट थोड़ा सा ये याद रखना है। और हमारा जो जब हमारा अर्थ जो है वो टिल्टेड नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट फॉर्म में होगा, तो हमारा जो है इक्विनॉक्स, जो मतलब हमारा इक्विनॉक्स मतलब दोनों ही हेमिस्फीयर पर बराबर लाइट पड़ती है। एक पर स्प्रिंग आता है, जैसे कि 21 मार्च में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आता है, बट साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या आता है? वहाँ पे भी स्प्रिंग आता है, ठीक है। यहाँ पर बस डेट का फ़र्क है। यहाँ पर 21 मार्च में क्या आ रहा है? स्प्रिंग है इक्विनॉक्स पर, बट यहाँ पर क्या है? 23 सितंबर में तो स्प्रिंग आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, वरना मैं इसके लिए भी क्लिप्स आपके लिए लेके आऊँगी और वो लास्ट में आई थिंक मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि अब लीप ईयर के बारे में पढ़ते हैं कि जो हमारे 6 आवर जो होते हैं वो हमारे हर ईयर में, मतलब हर ईयर में 6 आवर हमारे सेव होते हैं।
तो उसे कैसे सेव होते हैं, जो हमारे 24 आवर्स के बाद जितने भी मतलब घंटे बजते हैं, तो हम उसे 4 ईयर्स में मतलब हमारा एक दिन बढ़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर। जैसे कि 28 फेब तक हमारा नॉर्मली फेब को काउंट करते हैं, बट जब लीप ईयर आता है तो 29 का फेब होता है, ठीक है। अब अगर सपोज किसी का बर्थडे 29 फेब को आ रहा है, तो वो हर साल हर 4 ईयर के अंदर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन इलेप्टिक, इट्स क्लियर, या ओके। जो हमारा सन जो है वो क्या करता है, अराउंड द सन जो है वो इलेप्टिकल फॉर्म में वो मूव करता है, ठीक है। जिसे हम अब हम थोड़ा समर और स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर एंड विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अराउंड द सन के अराउंड में, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि अगर हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है, तो हमारे जो सीजन्स हैं वो पता चलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, तो हमें इस सब का पता चलता है, बसंत, तो इस चीज़ का हमें पता चलता है, ठीक है। अब हम नॉर्दर्न पोल में अगर हम जाएं, तो जो हमारा नॉर्दर्न पोल है वो डिक्लाइन होता है अगर सन के अराउंड, तो या बियॉन्ड द आर्टिक सी, मतलब आर्टिक सी पर, तो हम कंटिन्यूसली डे लाइट एक्सपीरियंस करते हैं 6 मंथ के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से समर जो है हमारा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइट गेटिंग फ्रॉम द सन, इट्स समर इज द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न ऑफ द इक्वेटर। तो सबसे जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया था, यही थोड़ा सेम रिपीट हो रहा है। तो 21 जो जून में है हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरीके से इसी का वाइस एंड वर्सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑल द कंडीशन आर रिवर्स्ड, ओके। तो यहाँ पर समर सोलिस्टर के अंदर क्या कौन सा दिन होता है, 22 दिसंबर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव करता है डायरेक्टली रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टूवर्ड्स। अब हमने क्या पढ़ा था, कैप्रिकॉन टूवर्ड्स, हमारा कैप्रिकॉन एंड कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है हमारा जो है 23rd हाफ जो है वो साउथ एंड नॉर्थ में है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा, तो लॉन्गेस्ट डे हो रहा होगा, तो शॉर्टेस्ट जो डे होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने पढ़ा। अब इक्विनॉक्स में हमने जैसे पढ़ा कि इक्विनॉक्स में डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल पोजीशन पर होते हैं, और हमारा जो सन है दोनों ही हेमिस्फीयर पर इक्वल पड़ता है। और जो हमारा अर्थ है वो अर्थ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म पर होता है, मतलब एकदम सीधा होता है, वो टिल्टेड नहीं होता, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज टॉक अबाउट दिस। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा एक क्लिप देख लीजिए ताकि मोर क्लियरिटी हो सके, ठीक है। As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. The
circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. This is the daily motion of the Earth. What would happen if the Earth did not rotate? The portion of the Earth facing the Sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर आपका कोई भी सुझाव है, सजेशन है, हमें कमेंट्स करके बताएं और ताकि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाते रहें फुल ऑफ एनर्जी के साथ। सो थैंक यू गाइस। मैंने जो अभी चैप्टर कंप्लीट कराया है उसके अब आप इतने एफिशिएंटली तरीके से आंसर लिख सकते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर को लिख कर बताइए कि आपको कैसा लगा और कहीं पर भी प्रॉब्लम है या कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।